ठीक है, तो चलिए लास्ट क्लास में बेटा हमने स्टार्ट किया था कि last class in last class we have started the magnetic field due to a current carrying coil, and for that we have done an experimental arrangement process. And in the experiment what we have done, first we took a smooth cardboard having two holes at A and B, and a wire is bent in the form of circular ring. Okay, and this ring is passed through through hole A and B, and these holes, and this wire is connected by using a rheostat, battery and key, with the key by using the key with the wire. And after passing the current through the wire, a magnetic field is produced as shown in figure. We have already done that in last class. हमने देखा कि then we sprinkled some iron fillings on the cardboard and see the see the magnetic field lines patterns on the cardboard. Okay, now start on the next. Okay, how the magnetic field lines, see how magnetic field lines, यहाँ पर हमारे पास next होगा बेटा pattern of magnetic field lines. ओके बेटा, तो चलिए मुझे वन बाय वन जैसे डायग्राम हम ऑलरेडी बना चुके थे, तो फर्स्ट मैं डायग्राम को यहाँ पर साइड में कॉपी कर लेता हूँ एक बार आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में डायग्राम था, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, एंड इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा फिगर में छोटा बना लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा चलिए बेटा, अब वन बाय वन मुझे बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो किस तरह से होगा बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट की हम बात करें तो फर्स्टली हमारे पास में जो स्टेटमेंट होगा बेटा वो किस तरह से होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी नियर द वायर। अगर हम बात करें बेटा तो नियर द वायर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी है बताओ, सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कुलर नियर द वायर बात कर रहा हूँ बेटा मैं। देखो ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सर आप टाइम दोगे लिखने के लिए? बेटा साथ में लिख लो, ये तो कोई इशू नहीं है इसमें, मैं पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं ना सारी चीजें, तो आप साथ में नोट डाउन करते चलेगा, बोल भी रहा हूँ साथ में और आप लिख भी लीजिए। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर नियर द वायर। ओके बेटा, and in second case that the space enclosed by magnetic field lines in the space enclosed by the circular ring। तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा कि देखो सर्कुलर रिंग ने कौन सा स्पेस कवर किया हुआ बेटा, ये वाला एरिया देखो, हाँ या ना। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ पर होगी बेटा, एक ही डायरेक्शन में होगी, देखो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, yes or no? The magnetic field lines, so we can say the magnetic field lines are in the same direction
in the same direction, in the space enclosed by the circular ring. Yes or no, beta? Circular ring. Done, beta? Okay. In third case, what we can say that near the circle, near the center of the circular ring. Suppose this is the center of the circle and this is the center of the circle. Yes or no? Near the center of the circular ring, magnetic field lines can be assumed as the parallel to each other, and the magnetic field at the center is considered as the uniform magnetic field. Yes or no, beta? Yes, beta? Yes, sir. Yes. Okay, now we can say the magnetic field lines, the magnetic field lines are, या हम ऐसा बोल सकते हैं, the magnetic field lines may be considered parallel to each other and the magnetic field as uniform magnetic field. Yes or no, beta? Yes. समझ आया बेटा सबको? सर आपने लास्ट लाइन क्या लिखा है? एंड मैग्नेटिक फील्ड्स and the magnetic field as uniform magnetic field. देखो सेंटर के अराउंड जो हमारे पास होगा वहां पर the magnetic field lines may be considered parallel to each other. यहाँ पर and the magnetic field as uniform magnetic field, यहाँ पर लिखा प्लेसमेंट near by the center of the सर्कुलर रिंग. ओके बेटा, तो देखो सेंटर के पास में जब हम बहुत पास में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी? नियरली पैरेलल होगी, ऐसे है ना? देखो ये वाली है ना, तो इनको हम कंसीडर कर सकते हैं क्या बेटा कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी? पैरेलल होगी, एंड इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके बेटा, Yes, sir. Yes, sir. डन. चलिए उसके बाद हम चलते हैं. सर एक डाउट. हाँ बेटा बोलो. सर वो जो आपने आधे सर्कल बनाए वो एक्चुअली में पूरा सर्कल होंगे ना, कॉन्सेंट्रिक? हाँ बेटा, पूरा एक सर्कल, point- वो पूरा सर्कल होगा. जैसे हमारे पास में क्या है, जैसे सर्कुलर सर तो ग्रुप हम है ना लोग इसका. हाँ बोलो. सर तो हम लोग ऐसे डिस्टिंक्ट पॉइंट क्यों लिखते हैं कि एट द नियर द वायर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन रेगुलेशन? बेटा देखो, जैसे हमारे पास सर्कुलर रिंग होगी तो करंट ऐसे फ्लो होगा. देखो यस सर. है ना, करंट ऐसे होगा. तो अगर मैं इस स्पेस की इस वायर की वजह से मैं बात करूँ तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्रॉस के फॉर्म में होगा, हाँ. है ना. और अगर इसकी वजह से मैं बात करूँ तो बेटा उसकी वजह से भी क्रॉस के फॉर्म में होगा, यस. है ना. और इसकी वजह से मैं बात करूँ तो ये भी एक क्रॉस के फॉर्म में होगा, और इसकी वजह से भी होगा, वो भी क्रॉस के फॉर्म में होगा, और इसकी वजह से भी क्रॉस के फॉर्म में होगा. ओके,
तो देखो नियरली सेंटर अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो पैरेलल टू ईच अदर होगी कि नहीं होगी बताओ मुझे, सेंटर के जस्ट पास में बात करें तो। हाँ हाँ सर, यार, है सेंटर ना, में है ना, सेंटर के पास में। और सेंटर पे अगर हम बात करें बेटा, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी सरफेस के। हाँ या ना बोलो, होगी। हाँ तो देखो अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे इस वायर के जस्ट पास में अगर हम बात करें बेटा, तो जस्ट नियर बाय द वायर हम बात करें, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक कंप्लीट सर्कल पूरा कर सकता है इस तरह से। हाँ या ना, हाँ। है ना। बट जैसे जैसे हम इससे दूर जाते जाएंगे बेटा, तो दूर जाते जाएंगे तो कंप्लीट सर्कल पूरा होने में देखो, अब कंप्लीट कर पाएगा क्या सर्कल को बताओ मुझे। हाँ यार, कंप्लीट कर पाएगा सर्कल बेटा, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है देखो, सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इनसाइड द वायर जो हम शो करेंगे बेटा, तो उसको हम इसीलिए स्ट्रेट लाइन ऐसे शो करते हैं उसको। हाँ सर, मतलब वो टेंजेंट कंसीडर करना है ना। हाँ, वो टेंजेंट आपको कंसिडर करना है। ओके, हाँ सर, गुड। चलिए यस सर। डन। चलिए और उसके बाद में बेटा हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा कि देखो ये तो हो गया बेटा किस पे, यहाँ पर चलिए इस डायग्राम को फिर से हम हटाते हैं। हो गया भाई। हाँ, चलिए। ओके बेटा, तो चलिए। Sir, your voice is not coming. हाँ बेटा, वॉइस मैं बोल ही नहीं रहा था ना, मैं डायग्राम को सेट कर रहा था थोड़ा सा। ओके, चलिए देखिए। अब देखो बेटा, उसके बाद में हम बात करें तो हमारे पास में सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी बेटा, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो कैसी होंगी, अगर मैं प्लेन की बात करता हूँ बेटा, है ना, तो सेंटर हमारे पास में क्या होगा, सपोज दिस इज द सर्कुलर रिंग, हाँ या ना, एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर perpendicular to the plane of the circular ring, yes or no, हाँ या ना। Yes. Magnetic field lines are perpendicular to the plane of the circular ring, हाँ या ना। यस सर। यस बेटा, चलिए। तो उसके बाद में यहाँ पर जो होगा वो डॉट, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, एट द सेंटर, एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are along the axis of circular ring and magnetic field, एंड हम बोल सकते हैं एंड परपेंडिकुलर टू द, सिंपल लिख लेते, चलो पूरा लिख लेते हैं, perpendicular to the plane of the coin, plane of the ring, yes or no बेटा।
Done, beta? And Yes, the next point, which is the most important, that the magnetic field can be increased or decreased by increasing the amount of current in the coil and by increasing the number of turns in the coil. Yes or no? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, the magnetic field strength can be increased सर इनके रेडियस को कम करने से भी इंक्रीज हो सकते हैं। हाँ बेटा, उसी के बारे में बात कर रहा हूँ मैं भी। कैन बी इंक्रीज्ड बाय increasing the number of turns and the current in the coil or in the ring. यस और नो बेटा? अभी हमने रेडियस के बारे में बात नहीं की है, तो अभी रेडियस के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्लियर कि रेडियस के फॉर्म में हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ओके, चलिए इनको नोट डाउन कीजिए बेटा। डन बेटा? Yes, sir. Yes. not एवरीवन सबका हो गया बेटा? चलिए नेक्स्ट हमारे पास, 2 मिनट। हाँ चलो बेटा, fine. बेटा डायग्राम भी ड्रॉ कर लेना ये ना। वैसे ये डायग्राम हम फिर से बनाने वाले हैं, बट यहाँ पे ड्रॉ कर लो कि हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन ऑफ द सर्कुलर रिंग। ओके, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू, द magnitude of magnetic field ओके बेटा, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द magnetic field B at the center of the circular ring, is क्या होगा बेटा? देखो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, वो फर्स्ट हमारे पास में क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द current passing through the coil, through the ring, sorry। ठीक है, तो हमारे पास में क्या होगा था, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा आई, इक्वेशन नंबर 1, एंड इन सेकंड क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द radius r of the circular ring or coil। Okay beta, then we can say
B is inversely proportional to radius of the circular thing. And this is the equation number 2. Okay beta, now from equation 1st and 2nd we can say B is directly proportional to I by R beta. Yes or no? And when we remove the proportionality sign, then we use a constant, and here constant is B is equal to mu naught I upon 2R. Okay beta, mu naught I upon 2R. And here we considered रिंग में एक ही टर्न बेटा सर, रिंग में एक ही टर्न होगा। क्या बोल रहे हो बेटा अभिनव? म्यू नॉट सर जो आपने लिखा है सर्कुलर रिंग जो ऊपर लिखा था उसमें एक ही टर्न होगा क्या? हाँ बेटा, तो यहाँ पे बोला है ना बेटा, वही तो मैं बता रहा हूँ कि हियर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा? 1 रियार में। एक ही तो रिंग हमने यूज की थी बेटा। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना है बेटा? 1 है ना? तो सिंपल हमारे पास में क्या होगा? इफ n इज द नंबर ऑफ टर्न्स in the coil, then magnetic field will be, क्या होगा बताओ बेटा? B is equal to mu naught n I upon 2R. Yes or no बेटा? And this formula is very very important for the NTSC exam. NTSC एग्जाम में बेटा इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल से मतलब हमारे पास में ये है बेटा कि आपको नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन होंगे क्वेश्चन में, आपको बोला जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स हमने इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज करके डबल कर दिया या फिर 3 कर दिए, 4 कर दिए, तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा, तो उसके लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। ओके बेटा, चलिए। सर आपने फॉर्मूला दिया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर में, हाँ स्पेशल बेटा। केस में। हाँ बेटा, सर आपने स्पेशल केस में ना मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर में ये फॉर्मूला दिया था। ये वाला फॉर्मूला मैंने वहां नहीं दिया बेटा। सर दिया था सर, स्पेशल केस में दिया था आपने। बेटा ये नहीं था, वो फॉर्मूला अलग था बेटा। फॉर्मूला अलग था वो बेटा, फिर से रिवाइज करो, रिकॉल करो व्हाट्सएप में। हाँ सर, उधर 2 पायर था और इधर 2 आया सर। तो फिर बेटा चेंजेस है ना, वहां पर हमने जो फॉर्मूला लिखा था वो हमारे पास में कुछ और था। क्या फॉर्मूला था वहां पर बताओ मुझे। हाँ सर, वहां पर जो फॉर्मूला था वो क्या था? वहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो हमने देखा था बेटा वो था हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, है ना? तो वहां पर ये साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 की वैल्यू अगर हम 1 कर देते हैं बेटा 1 + 1, तो हमारे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो कैसा होगा बताओ मुझे। बताओ बेटा। mu naught I up 2 पाई upon आर। 2 pi r. 2 पाई आर, यस, क्योंकि ये हमारे पास 1 + 1 हो जाता है 90 डिग्री इनफाइनाइटली वायर के लिए, एंड सेमी इनफाइनाइट वायर होता है तो क्या हो जाता है बेटा? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो जाता है ना? एंड हियर आर इज द रेडियस और द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो आर डिस्टेंस अगर इधर है तो आर डिस्टेंस इधर भी तो हो सकती है बेटा, है ना? और आर डिस्टेंस हम परपेंडिकुलर आउटवर्ड भी तो ले सकते हैं, इनसाइड भी ले सकते हैं। तो बेसिकली जो करंट की मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा वो इस करंट कैरिंग वायर के अराउंड इस सर्कुलर फॉर्म में तो होगा। देखो होगा कि नहीं होगा बताओ। होगा होगा। होगा। तो चलिए देखिए हमारे पास में क्या होगा,
मैग्नेटिक फील्ड बेटा यहाँ पर क्या है, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 r। तो इसके हेल्प हम क्या कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इफ नंबर ऑफ टर्न्स आर इंक्रीज्ड, देन द मैग्नेटिक फील्ड विल इंक्रीज और डिक्रीज। यस और नो, Increase. विल इंक्रीज और डिक्रीज, Increase. increase करेगा। ओके, एंड इफ आई increase the radius of the circular ring, then the magnetic field will decrease or increase? Decrease. 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 Decrease। ओके, चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं आपको लेता हूँ बेटा। सब लोगों के नोट डाउन हो गया बेटा ये? Yes, sir. सर आप फर्स्ट पॉइंट दिखा सकते हो? एक मिनट पहले फर्स्ट ओके। हाँ सर, थैंक यू। चलिए बेटा, सर ये हमने आपसे फॉर्मूला जो है बेसिक हाँ बोलिए। सर हाँ बेटा बोलिए। है b is equal to न्यू नॉट आई अपॉन। सर वो तो सर वो बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। नहीं बेटा, ये बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला नहीं है बेटा। 1 सेकंड में चेक कर लेता हूँ एक बार। जहाँ तक मुझे पता है नहीं है सर। एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में कोई मैग्नेटिज्म में कोई फॉर्मूला नहीं है बेटा आपके। बट हाँ, फॉर्मूला का यूज करके आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। लेट मी चेक फर्स्ट। ये जो हाँ ये जो बेटा, फॉर्मूला है ये आउटसाइड द कॉइल के लिए वैलिड है। हाँ बेटा, आपके जो है ना एग्जाम में इसका फॉर्मूला नहीं है, आपको सिर्फ एक्सपेरिमेंट है बस और कुछ नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, बस वो एक्सपेरिमेंट आपको करके बताना है आपको बस। ओके, तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है बेटा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, तो ये डिपेंड वो किस पे करे। हाँ बोलो एलिश, क्या बोल रहे हो बेटा? सर उसमें ये जो नंबर ऑफ टर्न्स था वो ये बताता है कि नंबर ऑफ सर्कल जब हम इंक्रीज करेंगे तो वो नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा ना। आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक होके आ रही है बेटा। सर अभी आ रही है मेरी आवाज? हाँ बोलो। सर उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स जो हमने बताया था वो जस्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्कल अराउंड दैट मैग्नेटिक फील्ड ही है ना, हाँ बेटा, द नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। हाँ बेटा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसे हमारे पास में क्या होगा, सिंपल एक सर्कल आपने यूज किया इस तरह से। ओके, अब इसको आप जैसे बहुत बहुत लॉन्ग वायर है, उसको इसी को कन्वर्ट करके आपने 2 सर्कल बना लिए इस तरह से, है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी आप कर सकते हो, जैसे मान लो यहाँ पर एक रिंग ये हो गई, दूसरी रिंग आपने इस तरह से यूज कर ली, तीसरी इस तरह से यूज कर ली, और इनके सर्कल्स क्या है, कॉन्सेंट्रिक है ना, इस तरह से, और सब में करंट पास करा रहे हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस होगा। ओके ओके ओके, चलिए यहाँ पर देखें, नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज हो जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है बेटा, देखो सिंपल एक चीज हम नोट कर लो कि यहाँ पर n नंबर ऑफ टर्न्स कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू, कैन बी फ्रैक्शनल वैल्यू, लाइक n इज इक्वल टू हमारे पास 1/4 हो सकता है बेटा, 3/4 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, एक्सेट्रा, हमारे पास कोई भी वैल्यू हो सकती है। सर दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड फॉर द आउटसाइड। नो बेटा, आउटसाइड की बात नहीं कर रहे हैं ना, मैंने आपको इसीलिए जब हमने फॉर्मूला लिखा था तो वहाँ पे देखो मैंने आपको पहले ही लिखा है, यहाँ पर हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें पहले ही हमने लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग। ओके, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड लेके क्या करोगे बेटा, आपको इनसाइड द कॉइल आपको देखना है ना कि कितना हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कितना नहीं चाहिए। ओके ओके बेटा, चलिए चलिए मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा। फाइंड द magnitude of magnetic field
magnetic field is a loop, या हम बोल सकते हैं a ring of one turn is converted into a coil having two turns, या फिर सिंपल चलो इसको रहने दो भी, इसमें आप इस टाइप के न्यूमेरिकल आपसे एग्जाम में पूछे भी नहीं जाता है, तो इसको थोड़ा सा स्किप कर देते हैं हम। चलिए चलो, इफ अ कॉइल is cut into two equal parts, then magnetic field will be, देखो हमारे पास सिंपल एक कॉइल है जिसमें ये टर्न दिया हुआ बेटा इस तरह से, ठीक है, इसको हमने दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया इस तरह से, एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो अब आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है बेटा सेंटर पे, दोनों की वजह से अलग अलग, तो यहाँ पर दोनों के लिए, कॉइल 1 के लिए और कॉइल 2 के लिए मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा बेटा दोनों के कॉइल पे, यस और नो? बेटा सेम होगा कि नहीं होगा बताओ मुझे। सेम होगा। सेम होगा बेटा इस तरह से, सर क्योंकि रेडियस हाफ ऑफ इनिशियल सेम होगा वैल्यू। सर। तो ये हमारे पास बेटा रेडियस हो गई, तो हमारे पास इसकी वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni अपॉन 2r होता है फॉर्मूला, आया ना? ठीक है, तो अभी हमने क्या किया बेटा, देखो नंबर ऑफ टर्न्स जो हमारे पास था कंप्लीट, पहले 1 टर्न था बेटा, यहाँ पर n इज इक्वल टू 1, आया ना? अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1/2 हो गया, 1/2 हाँ सर। 1/2 होगा, तो b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट i अपॉन 2r मल्टीप्लाइड बाय 1/2, आया ना? तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, म्यू नॉट i अपॉन 4r, यस और नो? यस सर। समझ आया बेटा? तो चलिए इसको लिखिए, the next question, if coil is cut into 4 equal parts, then magnetic field at center, क्या होगा बेटा बताओ मुझे, ये हमारे पास फोर्थ ऑफ द क्या? इनिशियल। तो ये हमारे पास में क्या होगा बेटा, इसको 4 पार्ट्स में अगर मैं इंक्लूड करूंगा तो हर पार्ट मुझे क्या ऐसा मिलेगा बेटा, देखो आया ना? तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न बेटा कितना है, 1 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे बताओ मुझे, 1/4 हो जाएगा बेटा, है ना? तो b इज इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, म्यू नॉट i अपॉन 2r मल्टीप्लाइड बाय 1/4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, म्यू नॉट i अपॉन 8r, जैसा मैं बेटा, समझ आया बेटा? और अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पर देखो, डायरेक्शन अगर मैं ये क्लॉकवाइज ले लेता हूँ तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, क्रॉस होगा कि डॉट होगा बताओ मुझे, क्रॉस होगा। क्रॉस होगा। एंड यहाँ पर डायरेक्शन में अगर अपोजिट ले लेता हूँ बेटा, तो बताओ मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, डॉट होगा ना बेटा? ओके, तो समझ आया बेटा? इस तरह के जो डायरेक्शन सेंस वाले न्यूमेरिकल है वो इस तरह से आएंगे आपके, है ना? एनटीएससी की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए बेटा इसको नोट डाउन कीजिए।
देन उसके बाद हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम देखते हैं, इसकी वजह से सर्कुलर लूप की वजह से। डन बेटा? यस सर। डन। चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास में, क्योंकि इस रूल का यूज करके हमारे पास में मोस्टली जो क्वेश्चन है आपके सॉल्व होने वाला है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके लिए बेटा? बोर्ड्स के लिए भी, क्योंकि बोर्ड्स में इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मतलब क्वेश्चंस बहुत आते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है बेटा। हाँ बेटा, इसको कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। ओके, डन बेटा? यस सर, डन। डन। चलिए उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्लॉक रूल। क्लॉक रूल, ओके। देखो क्लॉक रूल को अगर सिंपली अगर मैं बात करूं बेटा आपसे, तो यहाँ पर मैं आपके सामने दो डायग्राम बनाऊंगा। तो फर्स्ट डायग्राम जो मेरे पास होगा बेटा तो ये है, एंड सेकंड डायग्राम जो होगा मेरे पास ये है। यहाँ से नहीं करता ना, सिर्फ यहाँ से बनाना। इसको एक सेकंड मेरे बनाता हूँ। सेम सेम लग रहा है दोनों, ठीक है बेटा। देखो अब हमारे पास में क्या होगा कि फर्स्ट अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पर देखो बेटा, इसमें जो डायरेक्शन है करंट की वो है मेरे पास में क्लॉकवाइज, आया ना? यस और नो बेटा? Yes, sir. यस। एंड इसमें जो डायरेक्शन है बेटा वो है एंटी क्लॉकवाइज। समझ आई बात बेटा सबको? देखो अब देखा जाए तो ये दोनों फेसेस जो बेटा है, तो ये एक ही कोइल के दो फेसेस हैं। यस और नो? एक ही कॉइल के कितने Yes, फेसेस sir. है बेटा? एक ही कॉइल के दो फेसेस हैं। तो मैं 1 सेकंड आपको एक बार मुझे आई थिंक कैमरा मुझे कनेक्ट करना पड़ेगा इसका थोड़ा सा। कैमरा स्टार्ट हो गया मेरा? हाँ सर, हो गया। बहुत स्टक हो रहा है, वो थोड़ा सा हैंग हो गया आई थिंक। चलिए फिर भी Lag देखते हैं। हाँ लैग हो रहा है, मुझे भी पता चल रहा है, देख पा रहा हूँ मैं स्क्रीन पे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ बेटा देखिए, तो हमारे पास में क्या होगा, आप स्क्रीन पे देखिए कि देखिए हमारे पास यहाँ पर बेटा डायरेक्शन है, फर्स्ट डायग्राम में जो डायरेक्शन है वो कैसी है बेटा?
क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यस और नो? यहाँ पर ये कैसे है बेटा? क्लॉकवाइज है। और यहाँ पर ये कैसी है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज। और वी कैन से काउंटर क्लॉकवाइज। ओके बेटा, तो देखो इस कॉइल को अगर आप दूसरी साइड से जाकर के देखोगे तो आपको जो डायरेक्शन है वो कैसी दिखाई देगी? डायरेक्शन कैसी दिखाई देगी बताओ बेटा मुझे। अपोजिट दिखाई देगी बेटा। देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको ओके बेटा, चलिए इस कैमरा को तो हम छोड़ते हैं। देन उसके बाद हम नेक्स्ट कैमरा पर मूव करते हैं। हमारे पास एक और कैमरा है। चलिए बेटा, देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास में, जैसे अगर मैं बात करूँ, तो बेटा देखो यहाँ पर हमारे पास जो होगा, देखो स्विच करना पड़ेगा इसमें। ओके, ये तो डायरेक्शन हमारे पास क्लॉकवाइज है। देखो सब लोग देख पा रहे हो? हाँ सर देख। Yes, sir. सर दिख रहा है। दिखाई दे रहा है ना बेटा क्लॉकवाइज, है ना? ओके चलिए, अब मैं देखो वायर, अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ तो मैं दूसरी साइड पे इसको ऐसे कर, ऐसे देखो। अब देखो बेटा इस पे, अब ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रही है आपको? Yes. Yes, sir. यस। और सेम पीस को अगर आप ऐसे देखते हो तो ये क्लॉकवाइज है, देखो। यस बेटा, यस सर। Yes, sir. है ना? तो देखो यहाँ से हमारे पास में क्या होगा, चलिए तो यहाँ से क्या होगा बेटा कि जो कैमरा, सॉरी, तो देखो यहाँ पर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब करंट होगी बेटा, तो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी बेटा? इनसाइड होगी। और आउटसाइड बताओ मुझे। मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्लीज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्रॉस में होगी, डॉट में होगी, सेंटर में बेटा? ये दो सेंटेंस है। क्रॉस। फर्स्ट वाले में क्रॉस में होगी बेटा। तो क्रॉस में होने का मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ पे जा रही है बेटा? इनसाइड द प्लेन। हाँ या ना? मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं से भी आ रही है और वो कहाँ पे जा रही है? सर्कल में ऐसे एंटर कर रही है, Right. है ना? इनसाइड जा रही है। तो अब मुझे एक बार बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से पोल पे एंटर करती है बेटा? North. North pole. नॉर्थ पोल पे एंटर करती है। सर साउथ में एंटर करके नॉर्थ से लीव करती है ना? ये साउथ पोल होगा। यहाँ से लीव करती है बेटा और यहाँ से एंटर करती है ऐसे। हाँ या ना? है ना? sir. तो यहाँ हाँ, पर देखो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो क्या होगी बेटा? इनसाइड द प्लेन होगी। एंड दिस फेस विल बिहेव लाइक द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। यस और नो?
Yes, sir. समझ आए बेटा? देखो करंट के डायरेक्शन में हमने लिया एरोस, है ना? करंट के डायरेक्शन में जब हमने एरोस लिए तो हमारे पास में दिस पोल, when the direction of current is clockwise, then the face in front of us will behave as a south pole of the bar magnet. Yes or no? Yes, sir. Yes. And if the direction of current is anti-clockwise, then the face in front of us will behave like a north pole of a bar magnet. Yes or no, बेटा? Yes, sir. समझ आया बेटा? दोनों चीजें देखो क्या होगा कि जब हमारे पास देखो जो जो करंट की डायरेक्शन है वही हम कंसीडर करेंगे ना। देखो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होगी तो कौन सा पोल जनरेट होगा आपके सामने? Which pole will generate in front of you? North Pole. North pole. And the direction of current is clockwise, then the phase will behave as a So, south pole. समझ आया बेटा क्लॉक रूल? आया आया ना? Yes, sir. सिंपल हम लिख सकते हैं बेटा, क्या होगा बताओ? सिंपल हम बोल सकते हैं द polarity of the faces of the coil depends on the direction of current. Direction of current. उसके बाद में क्या होगा? फर्स्ट, if the direction of current is clockwise, the direction of current is clockwise, then the phase will behave as a south pole of the magnet. Yes or no? Yes beta. And in second case, if the direction of current is anti-clockwise, ओके बेटा। आप देखो एंटी क्लॉकवाइज की जगह आपको एक और वर्ड दिखाई दे सकता है, काउंटर क्लॉकवाइज उसे बोला जाता है ना। काउंटर क्लॉकवाइज then phase will behave as north pole of the magnet. डन बेटा? यस सर। सबका हो गया बेटा कंप्लीट? सर मैं लिखा। हाँ लिख रहा आराम से लिखो बेटा। चलो उस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। लेट्स नोट डाउन द क्वेश्चन। ठीक है, आपको बेटा एक कॉइल आपको इस तरह से दी हुई है।
चलिए, एक कॉइल आपको इस तरह से दी हुई है। चलो देखो मैं आप सपोज हमारे पास में कॉइल बेटा इस तरह की है। ओके बेटा, तो देखो यहाँ से मैं आपको ध्यान से देखना बेटा, देखो डायरेक्शन बहुत मैटर करती है कि आप किस तरह से उसको अज्यूम करके चलते हो। तो देखना बेटा, यहाँ से करंट एंटर हो रही है, समझ में बेटा कि करंट एंटर हो रही है, देन फिर ऐसे टर्न हुआ, टर्न होने के बाद में यहाँ से ऐसे एंटर हुई, देन फिर यहाँ से इस तरह से, फिर ऐसे लूप में गई, देन ऐसे, देन इस तरह से डायरेक्शन ऑफ करंट हमारे पास है बेटा। ओके, और यहाँ से करंट एग्जिट हो गई। समझ में आया बेटा सबको लूप कैसे बना है? हाँ या ना? देखिए, तो यहाँ से क्वेश्चन समझ आया बेटा? Am I audible? यस ऑडिबल होना बेटा? चलिए, तो यहाँ से देखिए, अब मुझे बताओ, यहाँ पर एक फेस, दो फेस होंगे बेटा इसके, एक कॉइल का ये वाला फेस होगा और दूसरा फेस ये वाला होगा, है ना? तो ये वाला जो फेस है बेटा वो ये वाला है। Yes. तो यहाँ पर ये ए है, ओके, और ये वाला फेस है वो बी है। तो अब मुझे ये बताओ बेटा, यहाँ पे कौन सा पोल होगा? नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल होगा और साउथ पोल होगा। सर ए वाला साउथ पोल होगा और बी वाला नॉर्थ पोल होगा। हाँ सर ए वाला साउथ पोल होगा, कंफर्म? हाँ सर। चलिए, अब मैं आपको फिर सर से ए दिखाता वाला हूँ। साउथ पोल होगा और बी वाला ए वाला साउथ पोल होगा, कंफर्म? हाँ 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 सर। सर। बेटा हाँ सर। बेटा ध्यान से देखो उसको एक बार, डायरेक्शन ऑफ करंट को देखो, करंट यहाँ से एंटर हो रहा है सर ना? करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है सर, तो सर ए वाला नॉर्थ पोल। होगा ये B वाला वाला- south भी होगा क्योंकि वहां से करंट एंटर कर रहा है। देखो बेटा, सर इस अगर चीज वेस्ट को, साइड से देखेंगे तो क्लॉकवाइज हो। मेरी बात सुनो, इसको ऐसा हाँ, करो सर। बेटा, देखो इस कॉइल को अगर मैं इस फेस को अपनी तरफ करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे ऐसा फेस दिखाई देगा, देखो, हाँ या ना? देखना ध्यान से, ऐसा फेस मुझे दिखाई देगा, हाँ या ना? ऐसे ही दिखाई देगा ना बेटा, और जिसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो देखो ऐसे होगी, ये करंट जा रहा है, हाँ या ना? समझ आया बेटा? और इस फेस, अगर बी फेस को मैं अगर बनाता हूँ तो बी फेस से मुझे कुछ इस तरह से दिखाई देगा, करंट जो है, सॉरी ये हमारे पास क्या हो गया, ये जो फेस होगा बेटा, इस पे जो होगा वो, जहाँ पर ए बना है वहाँ पर नॉर्थ होगा। हाँ, अब समझ में आ गया ना फटाफट से? ये वाला फेस हमारे पास होगा, इसमें करंट ऐसे जा रहा है बी वाले पे, और करंट की डायरेक्शन जो होगी वो ये होगी इसमें। चलो अब मुझे बताओ, ये वाला फेस ए है बेटा, ये वाला फेस बी है, तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज है, हाँ या ना? हाँ सर। है ना? तो ए फेस पे कौन सा पोल जनरेट होगा बताओ मुझे? नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल North जनरेट pole. होगा बेटा, है ना? सब लोग साउथ बोल रहे थे, मैंने इसलिए आपको बोला था कि सबसे पहले हमें डायरेक्शन सेंस चेक करना है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कहाँ पर होगा। ओके, तो जैसे ही आपको इमेजिनेशन आपका अच्छा होना चाहिए कि कॉइल को हम कैसे रोटेट करना है 3D में अपनी तरफ। ओके, तो यहाँ पर कौन सा जनरेट होगा बताओ मुझे बेटा? यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ करंट देखो, ऐसे अगर मैं रोटेट करूंगा तो इसको कैसे होगी? क्लॉकवाइज मिलेगी, देखो, है ना? तो यहाँ पर कौन सा पोल जनरेट होगा बेटा? साउथ पोल। पोल। साउथ पोल जनरेट होगा। समझ आई बेटा बात? आया ना? यस सर। डन। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को।
देन इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। हाँ बेटा, इसके लिए कोई डाउट है किसी का इसके रिगार्डिंग? सर एक डाउट था कि हम लोग अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यानी हम लोग अगर उस साइड पे रहे हाँ तो बेटा, ये क्लॉकवाइज। हाँ सर सर वैसे शायद से क्लॉकवाइज ही हो। हाँ सर, मेरे को बहुत डाउट रहा क्योंकि वो साउथ पोल आना चाहिए मेरे हिसाब से। साउथ पोल नहीं होगा। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन अभी करवाता हूँ इसके सर बाद जो में। आपने नीचे बनाया ना, हाँ हाँ, सर आप कॉइल को फ्रंट व्यू से देखने की बात कर रहे हैं ना सर? तो अगर ए को हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो सर आपने सही लिखा है, बट अगर हम पीछे से देखेंगे तो सर बाकी सब ऊपर से सर पर एंड्स तो इस पे रहेंगे ना, लास्ट इस पे रहेंगे ना, तो हम लोग को दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉइल है ना, आपको सिर्फ इसका जो सर्कुलर फेस है ना वो देखना है। क्या देखना है आपको? सिर्फ साइड